Most people dream of building a successful career in finance, but very few actually do so. And some of them rise to lead sales and business development in top asset management companies. Today, we have someone who has done exactly that. From starting his journey in sales at ICICI Prudential AMC to becoming senior vice president, head of West and East at Carnelian Asset Management, he has spent 17 years in the finance industry, 17 big years. In this conversation, we'll dive into the career lessons, the future of career in finance sales, how to build trust with clients, and what it takes to grow as a leader in the industry. If you are someone who wants to build a career in wealth management or sales and business development, this podcast is for you. Hi guys, I am Prince Shivare. I am the founder of the Life of Choice, and we are building an ecosystem for finance professionals to grow 10x in their career. And I have with me नरेश तिवारी सर. वेलकम सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. एंड मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सर और मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कोलीग्स थे, साथ में थे, हम लोग अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को. सो वेलकम अगेन सर. सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द वे यू वांट टू डू एंड देन विल कैरी फॉरवर्ड दिस कन्वर्सेशन. या. Thanks, Prince, and I would like to thank you for giving us this opportunity. As you have briefed very fantastically that, yeah, it's been like 17 years, and a lot of things which I've learned in the 17 years, have met a lot of good people, mentors, and colleagues, and subordinates, superiors. And so my journey has been very good with this. In financial industry, wherein in 2008 when I joined in this industry, I think it was a very people don't know about the financial instrument at that point of time, and I typically we were there talking about mutual fund which at a very nascent stage. Today I think it is घर घर की कहानी है, सब लोगों को पता है म्यूचुअल फंड क्या है, and lot of awareness has been done in this last 17, 20 years. So, yeah, it's been a very fantastic journey in the financial capital market. तो वैसा है, मतलब बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत लोगों से जान पहचान हुई है, अच्छे लोग मिले हैं इस इंडस्ट्री में, एंड दैट इज हाउ माय ग्रोथ हैज बीन. राइट सर, ग्रेट. सर आपने बोला कि मतलब यू आर हेयर सिंस द म्यूचुअल फंड स्टार्टेड. लाइक मैंने आपका एक पोस्ट भी पढ़ा लिंक्डइन पे भी, मैं स्क्रॉल कर रहा था. सो हाउ टू ग्रो म्यूचुअल फंड इन इंडिया, आपका एक पोस्ट था. सो 14-15 ईयर्स बैक था वो. तो मतलब हम समझ सकते हैं कि आपने मतलब पूरा देखा है इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए. स्टार्टिंग से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ एंड लाइक यू आर सीन दैट. एंड नाउ you are seeing the rise of AIF and PMS in India. Like I know that you are working in that domain as well. सो सर मतलब जब भी कोई करियर स्टार्ट करता है तो क्या डिसीजन होते हैं कि जो एक करियर में आगे लेके जाते हैं, क्योंकि एक अच्छी अच्छी पोजीशन तक पहुंचना इज इटसेल्फ टास्क एंड जॉब, और हर कोई नहीं पहुंच पाता वहां तक. सो व्हाट डिसीजन शेप्ड योर करियर? आपको क्या लगता है, व्हाट्स द थॉट? सी मेरे को ऐसा लगता है कि एक है दैट फर्स्ट इज योर इंटरेस्ट. If you are, I think from my schooling, I was very clear, being from a defense background. ओके. Matlab, my dad, my brother, my uncles, cousins are from a defense background. But I think ये बोलो interest था, awareness था, so I started with my with my college, start taking commerce as a stream, and then doing business management as a graduation, and then MBA. लैंडेड इन बॉम्बे, एंड आई थिंक वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं था पहले से ही कि मेरे को इस फील्ड में जाने का. एंड somehow I landed in a mutual fund company initially where I did interns. तो मेरे को वो थोड़ा सा अगेन इंटरेस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग अप देयर कि आई वांटेड टू बी इनटू द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जहाँ पे आई थिंक मेरे को उनका इकोसिस्टम थोड़ा समझ आने लग गया था. तो दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इन 2008. और मतलब आज तो आई थिंक व्हाट आई बिलीव टुडे, तो देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस, लॉट ऑफ accessible to information, or I think you can easily do lot of networking, and I think you can उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं अपने करियर बिल्ड करने के लिए. मतलब मैं कहूँगा कि आज से 2007-8 में इतना इजी नहीं था वो नेटवर्किंग करने के लिए. तो वो तो तब ऐसा था कि वी हैव टू कॉल अप, वी हैव टू मीट अप पर्सनली. बट टुडे जो लगता है कि वो थोड़ा सा आसान हो गया है. बट इसमें ये भी है कि यू नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ऐसा नहीं है कि जर्नी हैज बीन इजी, इट्स बीन अ रोलर कोस्टर.
यू विल लर्न इन दिस जर्नी, अप्स एंड डाउन्स आपके होंगे। आपको जैसा लगेगा कि आपका रोड बहुत सिंपल है, बट देन आपको ये भी रहेगा कि देर इज समवेयर अ रोलर कोस्टर राइड, ऊपर नीचे होगा। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, एंड आई थिंक एंड एवरी डाउन साइड विल गिव यू सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अपॉर्चुनिटी टू राइज। तो और अब तो मैं ये कहूँगा जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। इंडिया जो ग्रो कर रहा है एज अ हाउस, हम लोगों के पास एक फंड्स है जिसको कहते हैं हम भारत अमृतकाल, वेर इन वी बिलीव कि यार बाय द टाइम इंडिया टर्न्स 100, तो देर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड इन दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक लॉट ऑफ सेक्टर्स आर ग्रोइंग। BFSI जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, हमको लगता है वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो आप देखो, एक कन्वेंशनल बैंक से लेके आज NBFC, वेल्थ आउटफिट, इतने सारे अपॉर्चुनिटी खुल रहे हैं कि किसी को भी अपना करियर, अगर दे दे आर लुकिंग फॉर अ ग्रोथ इन BFSI, और इफ दे हैव इंटरेस्ट, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द नाइस प्लेटफॉर्म और सर्विस और इंडस्ट्री टू ग्रो। राइट सर, आपने काफी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। हार्ड वर्क, नेटवर्किंग, अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर राइड, एंड लाइक भारत का अमृत काल एंड BFSI। सो BFSI का पॉइंट को सबसे पहले पिक करता हूँ, एक एक करके बात करेंगे। तो क्रेडिट क्रंच तो अपने कंट्री में है, लाइक बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर तो अच्छा करने ही वाला है, वो पॉइंट तो सर आपका बिल्कुल वैलिड है। सो भारत अमृत काल के बारे में थोड़ा बताओ, आपने बोला ही है सर तो क्या मतलब, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच रहे हैं आगे, क्या देख रहे हैं, क्या पिलर्स हैं, मतलब क्या लेवर्स हैं जो उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं? आई थिंक आप ये देखोगे कि भारत को एक बार सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो राइट। सोने की चिड़िया का मतलब ये था कि भारत, इंडिया वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 25% ऑफ द ग्लोबल GDP। ठीक है। बट पोस्ट ब्रिटिश एरा वी हैव कम डाउन टू 1.5। और आप देखो, लास्ट जब से हमें आज़ादी मिली है, वी आर नाउ टुडे 4.5 ट्रिलियन GDP। तो राइट। हमको ये लगता है कि दिस इज सेट टू गो टू 29-30 ट्रिलियन GDP। सो राइट। हमारा जो पर कैपिटा आज है वो है $2,600 का। और व्हाट वी बिलीव दिस इज अगेन सेट टू गो टू 16-18 thousand पर कैपिटा इनकम। तो ये जो सब चीज़ें हैं, और एक मैं आपको कहूँगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो आज सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। सो वो जो स्ट्रेंथ है, हमारी लीडरशिप टीम जो है ऊपर, जो कंट्री चला रहे हैं, आई थिंक दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। तो वहाँ पे देन देर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विच हैज बीन क्रिएटेड। तो आई थिंक वी विल बी द यंगेस्ट कंट्री फॉर नेक्स्ट 50 years। वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग 25% ऑफ आवर ग्लोबल वर्कफोर्स, जो हमें लगता है ऐसा। तो ये जो चीज़ है आज हमारे पास, हमारा डिविडेंड डेमोग्राफिक वो ऐसा है कि बहुत स्ट्रांग है। उस वजह से हमारा कंजम्पशन बूम, उस वजह से हमारे टेक्निकल नो हाउ, उस वजह से हमारे, आई थिंक एवरी कंट्री इज लुकिंग अप टू अस कि राइट। इस कंट्री में कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मतलब वी कैन से दैट वी आर अ फैक्ट्री टू द वर्ल्ड, वी आर ऑफिसेस टू वर्ल्ड, कंजम्पशन है, मैन्युफैक्चरिंग है। आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रैपिड पेस से हो रहा है। आई थिंक एवरी सिटी इंडिया में जो हो, आई थिंक इट इज नॉट अबाउट ओनली वन सिटी और वन स्टेट। आई थिंक हर स्टेट में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। वी आर टॉकिंग बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज अक्रॉस कंट्री। तो इट इज द पूरा इकोसिस्टम आज बन रहा है कंट्री में, जो आई थिंक ये भारत अमृत काल का एक फेस है, जो ये जर्नी है। सो इसको आप जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करें, या आपका खुद का सक्सेस कैसे रहेगा, वो आपके ऊपर राइट सर, राइट सर। आपने दो तीन बार बोला नेटवर्किंग नेटवर्किंग, क्योंकि मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस है कि फाइनेंस में नेटवर्किंग मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना जानते हो, आप किस किस को जानते हो ज़्यादा मैटर करता है। तो थोड़ा आप बताओ नेटवर्किंग पे आपकी जर्नी क्या रही सर, मतलब 17 ईयर्स में आपको कहाँ कहाँ नेटवर्किंग के थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिली, कैसे आपको लगता है कि कोई पर्सन अभी जो इंडस्ट्री में आ रहा है वो कैसे नेटवर्किंग के थ्रू प्ले कर सकता है अपने करियर में आगे बढ़ के, तो थोड़ा नेटवर्किंग पे आप थोड़ा बताओ। तो देखो क्या होता है ना, मतलब नेटवर्किंग ऐसा है कि बहुत सिंपल रूल है कि, और मैं थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल रूल पे बिलीव करता हूँ। जहाँ पे यार मतलब आप डिफरेंट लोगों को मिलते हो, आप जब अपना करियर स्टार्ट करते हो, एंड इट इज़ अ जर्नी, इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। राइट। ऐसा नहीं है कि ये आज से चालू होता है। मतलब आप जिस दिन, आई थिंक आप अपने लाइफ में करियर में चालू करते हैं, आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके जो बॉसेस होते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं, वो उस दौरान क्या होता है, यू इंटरेक्ट विद देम, अंडरस्टैंड विद देम, एंड दैट, और उसमें क्या होता है,
आप एक से मिलते हो, फिर दो से मिलते हो, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, आप कहीं इवेंट में जाते हो। एंड इवेंट में जाके क्या होता है कि आप, ठीक है, एक होता है आप एक ने आपने एक कार्ड रख लिया अपने पास, राइट। बट आपने उस कार्ड को कैसे यूटिलाइज किया, आपने मतलब एक होता है आपने एक मैसेज डाला, शायद उन्होंने उसका आपको रिप्लाई किया, बट उसके आप आगे आप कैसे बिल्ड करते हो। राइट। एंड इट इज ऑफ कोर्स बोथ गिव एंड टेक, अंडरस्टैंडिंग आप क्या वैल्यू एडिशन करते हो व्हेन भी आप जब भी उनसे इंटरेक्ट करते हो, या वो आप में क्या देखते हैं। और ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी, इट इज नॉट ओनली फॉर अपॉर्चुनिटी, इट इज टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल। ठीक है, राइट। नेटवर्किंग का मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप आपको कोई जॉब या कोई काम के लिए ही यूज करना है। इट इज दैट बिकॉज आप एक ही इंडस्ट्री में आप एक रिलेशन रखते हो। यस। रिलेशन मतलब वो, उस रिलेशन से आप उनसे कुछ समझते हो या वो आपसे कुछ समझते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, क्लाइंट कैसे बिहेव कर रहे हैं, फंड्स क्या कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग के अराउंड देर आर मेनी अदर पैरामीटर्स। मतलब आप नेटवर्किंग को कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर है। इट इज नॉट ओनली टू गेट दोज अपॉर्चुनिटी इन द जॉब, बट इट इज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड अदर। और बाकी तो ऐसा है कि मतलब जैसा मैंने कहा कि बीएफएसआई ग्रो कर रहा है एज अ सेक्टर, तो वो आपको ग्रोथ तो वहाँ मिलेगी ही मिलेगी। बट आप जब अलग अलग लोगों से मिलते हो तो उनसे अंडरस्टैंड करते हो कि क्या चल रहा है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, फंड्स कैसे कर रहे हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और एक कॉन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। आप जैसे घर पे या अपने घर पे आप जैसे अपने मॉम डैड के साथ करते हो, एंड देन आप नेटवर्किंग कैसे करते हो, आपके कजन्स होते हैं, आप उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो। 2000 इन पर्सनल फ्रंट राइट। होते हैं, वो भी एक नेटवर्किंग ही है। ठीक है कि भाई आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद अपने वन डाउन कजन या सेकंड डाउन कजन से नहीं बात हो पाती है, वट एवर, कि वो बहुत दूर होते हैं या वैसे। बट अगर आप उनसे महीने में या 2 महीने में 3 महीने में भी एक बार एक आध बार फोन उठा के कर लिया, उनसे हाय हेलो कैसे है क्या कर रहे हो वो भी कर लिया, दैट इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग। राइट सर। मतलब तो वैसे आप अपने या नेटवर्किंग को यूज कर सकते हैं। यस सर। मतलब अभी जैसे जितने लोगों से काफी, जब से हमने स्टार्ट किया जनवरी में अपना कम्युनिटी बिल्डिंग, एंड देन तब से मतलब काफी लोगों में ऑब्जर्व किया कि नेटवर्किंग की लोगों को जरूरत तभी आती है जब उनको कुछ चाहिए होता है। सो ये मतलब लोग बहुत माइंडसेट में थोड़ा सा एक दो गेम, मतलब एक दो स्टेप पीछे का खेल रहे हैं अभी। एक दो स्टेप आगे आना पड़ेगा कि लाइक, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मुंबई में जैसे जब सब जाते हैं ना लोकल ट्रेन से, तो बारिश वाले दिन में सब छाता बैग में रख के ले जाते हैं, और बारिश वाले दिन तो खरीदने नहीं खड़े होते ना लाइक। सो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है लाइक। सो नेटवर्किंग इज लाइक आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है और आपके लिए, और वैल्यू एक्सचेंज है यार, आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। अगर सपोज करो अभी मैं, नरेश सर बैठे हैं, मैं उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूँ तो कहेंगे प्रिंस क्या कर रहा है यार, आजा थोड़ा बता दे, ये कर दो। सो कहीं ना कहीं एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, मतलब दैट्स ग्रेट थिंग। सर मतलब आपने Correct. बोला कि आपकी फैमिली डिफेंस से है एंड ऑल। सो कभी डिफेंस में नहीं जाना था, सेल्स में कहाँ से आ गए? वाई, मतलब अगर सेल्स नहीं करते तो क्या करते आप? अगर सेल्स नहीं करते तो मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मतलब हाँ, तो ऑफ कोर्स शायद डिफेंस या स्पोर्ट्स में रहता। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिफेंस बैकग्राउंड है, तो वो अपना ये रहता है कि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन वो राइट। रहता हमारे पास, वो करने का कुछ रहता। बट आई थिंक यार सेल्स तो हर कोई सेल्स कर रहा है लाइफ में अपने, मतलब जो मेरे को मालूम है, एक छोटा बच्चा भी अगर वो उसको चॉकलेट चाहिए तो वो भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है। अब वो कन्विंस करने का उसका तरीका अलग रहेगा। तो तो आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग सेल्स इन देयर ओन लाइफ। बट यार सेल्स में मैं कहूँगा, अगर ऐसा है कि सेल्स में अंडर आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। मतलब आप बहुत डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट रीजन वालों से मिलते हो, तो ऑफ कोर्स मेरे काम में बहुत ट्रैवल रहता है। तो उसमें क्या होता है कि हम यार जैसे मैं बताता हूँ, मैं एमपी जाता हूँ तो वहाँ पे अलग टाइप के लोग होते हैं, जहाँ पे उनका अलग कल्चर होता है, उनकी अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये सब आपको आई थिंक सेल्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ अगर आपको ये इंटरेस्ट है तो आपको ये सब का अपॉर्चुनिटी मिलता है। राइट सर। और सेल्स इज लाइक कि मजेदार है, लोगों से मिलना, बात करना, घूमना फिरना, लाइक दैट्स ग्रेट थिंग। राइट। सर अब जैसे अभी आप काफी 17 ईयर्स से काम कर रहे हो। सो जैसे हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के फंड हाउसेस में काम कर रहे हैं, लाइक दे आर बिल्डिंग इन, दे आर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर करियर। सो व्हाट फ्रेमवर्क और अप्रोचेस डू यू टेक और टू बिल्ड एंड स्केल लाइक B2C और B2 बिजनेसेस? अगर मैं B2B की बात कर रहा हूँ,
B2B में डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बिल्ड करना है, और B2C में बात कर रहा हूँ सी, क्योंकि अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, तो हाउ यू डील विद दोज क्लाइंट्स। सो थोड़ा सा फ्रेमवर्क ऐसा बताओ कि जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा हेल्प हो जाए इस पॉडकास्ट को देख। या तो देखो, जिस पहले तो है कि आपका इंटरेस्ट टुवर्ड सेल्स होना चाहिए, एंड सेल्स में अब तो ऐसा है कि इट इज नॉट ओनली सेल्स, इट इज ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन टू योर क्लाइंट। नाउ विद इन B2B इन अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फॉर मी माई डिस्ट्रीब्यूटर इज माई क्लाइंट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन में साइड में है, तो उनके पास जो उनके एंड क्लाइंट हैं। तो दोनों में ही आप क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो क्लाइंट के लिए, वो इम्पोर्टेंट करता है। जैसे मैंने कहा, सेल्स इज कॉमन अंडरलाइन थिंग, बट उसमें वेदर इट इज B2C और B2B, आप वैल्यू एडिशन क्या करते हो क्लाइंट के लिए, क्या उसको बेस्ट दे सकते हो। इट इज ऑल अबाउट। और वो जर्नी ऐसी कि आप कैसे उनके साथ फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करते हो, क्योंकि आप तभी बढ़ोगे जब आपका क्लाइंट बढ़ता है। तो क्लाइंट जब बढ़ेगा, और ऑटोमेटिकली आपकी भी ग्रोथ उसी हिसाब से होगी। अगेन इट इज, अब किसी आपने किसी क्लाइंट का अच्छा किया ओवर अ पीरियड ऑफ से 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, वैसे ही वो आपको अपने रेफरेंसेस देंगे आगे, और वैसे ही आप ग्रो करोगे। तो B2C बोलो या B2B बोलो, अगेन अंडरलाइन सेल्स है। बट जहाँ पे भी आप काम करो, मतलब विद इन द फाइनेंशियल सर्विसेज, आप किसी के लिए भी काम कर रहे हो, या जो भी आपका क्लाइंट है, एंड क्लाइंट, उसके लाइफ में क्या आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उसको आप ऐसा क्या दे सकते हो, और उसके साथ आप कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। तो जैसा मैंने कहा, इंफॉर्मेशन एक्सेस सबको है आज की तारीख में, बट राइट। आप उसको हेल्प कैसे कर सकते हो ग्रो करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन आप उसको कैसे हेल्प करेंगी, वो अगर आप उसे बता सकते हो, तो आई थिंक वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाएगा। फिर आपकी, इट विल बी नॉट अ ट्रांजैक्शनल सेल, इट विल बी मोर रिलेशनशिप बिल्डिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। राइट सर, गॉट द पॉइंट कि एक बार के क्लाइंट आया तो लाइक कि उसे फार्मिंग माइंडसेट, मतलब बोलो हंटर नहीं, लाइक कि एक बार में अपना टारगेट पूरा कर लिया, हाँ, लाइक तो आप उसको। उसको नर्चर करने का है, इट राइट इज राइट। लाइक अ बेबी टू यू। गॉट द पॉइंट। अब सर सेल्स थोड़ा सा, मतलब आपको ही पता ही है कि थोड़ा हर टाइम तो ऐसे, जैसे अप्स एंड डाउन आपने बोला, तो सेल्स के बिजनेस में भी होता है, बिजनेस भी साइक्लिकल होता है, जैसे मार्केट साइक्लिकल होती है, क्योंकि जब मार्केट जा रहा है तो लोग भी कहते हैं भाई डालो डालो, जब मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है तो वो होता है। बट टारगेट्स हमेशा रहने वाले हैं सेल्स में। सो उस टाइम पे मतलब टीम्स वगैरह को कैसे मैनेज करते हैं, तो मतलब क्या रहता है कि मतलब लोगों को कैसे करें कि भाई होगा, आगे भी होगा, अभी जो चल रहा है निकल जाएगा, तो वो फेस कैसे पार होता है। देखो यार, मेरा एक मानना है और मैं ये कहता भी हूँ, अगर आपकी लाइफ में प्रेशर नहीं है तो आप ग्रो नहीं करोगे। ओके ओके। ठीक है। तो प्रेशर होना ज़रूरी है, एंड इट्स हेल्दी, प्रेशर होना या हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हो, एंड आई थिंक देर आर लॉट्स ऑफ सेल्फ हेल्प बुक विच टॉक्स अबाउट कि आप राइट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी आप ग्रो करोगे। आप बार बार, यू विल हैव मल्टीपल फेलियर्स, बट दैट मल्टीपल फेलियर्स विल टीच यू हाउ टू ग्रो, हाउ टू राइज अगेन। तो और मेरा बहुत सिंपल, एक मैं बहुत बार बोलता भी हूँ यार, मतलब अगर चावल को आपने कुकर में डाला और प्रेशर, सीटी नहीं लगी, प्रेशर नहीं लगाओगे तो चावल भी नहीं पकता है। राइट। वो मेरा मानना है कि विदाउट प्रेशर तो कुछ होगा नहीं, इजी टास्क नहीं है। एंड राइट सो टारगेट्स है, एंड अगेन जैसा है कि मार्केट साइकिल्स अपने हिसाब से चलते हैं, और मार्केट्स में अपने मूड्स होते हैं। क्लाइंट भी आज बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, क्लाइंट भी समझते हैं कि मार्केट्स क्या है। राइट सर। सो अगर कोई प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव फंड हाउस का या उसकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी अच्छी है, तो ओवर लॉन्ग टर्म उसमें क्लाइंट को अच्छे रिटर्न्स आएंगे। बट अगर क्लाइंट को आपने ये सब इन्फॉर्म नहीं किया, और उसको खाली, जैसे आपने कहा, हंटर माइंडसेट से आप चले गए कि आपने खाली, आपको वो उसको बेच के ही आना है, राइट तो वो माइंडसेट से आप गए तो फिर वो क्लाइंट आपके साथ नहीं रहेगा। और आई थिंक जैसे टारगेट हमारे साथ लगे अटैच रहते हैं, वैसे ही वो क्लाइंट भी आपके साथ अटैच रहेगा अगर आपने उसको करेक्ट गाइड किया है। तो आई थिंक फिर अगर आपने करेक्ट गाइड किया तो फिर आपको वो चैलेंज नहीं आएगा आपके टारगेट्स अचीव करने को, क्योंकि कैसा होता है कि टारगेट अचीव तो करना ही है हमको, उसका नो डाउट, उसमें यस। कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं होता है। बट देन क्लाइंट हेल्प टू अचीव दो टारगेट, तो क्लाइंट ऑल्सो अंडरस्टैंड। जैसे मैंने कहा कि इनकम लेवल क्लाइंट बढ़ रहा है, तो क्लाइंट के पास अपॉर्चुनिटी है, क्लाइंट के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास पैसा है। अगर आप उसे राइट गाइडेंस दोगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ टारगेट अचीव हो जाएंगे।
और ठीक राइट। है, कभी कभी जैसे मैंने कहा कि इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, आपको हो सकता है बहुत टाइम टारगेट अचीव ना हो आपके, बट यू शुड नॉट थिंक दैट इट्स अ फेलियर। इट इज मोर अंडरस्टैंडिंग कि आप वो जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको दिमाग आपको लगाना पड़ता है कि मैं कैसे वो अपॉर्चुनिटी को अचीव करूँ, एंड दैट इज हेयर दोज न्यू आइडियाज और इनोवेशन चालू होते हैं। राइट सर, गॉट द पॉइंट। सर जैसे अभी आप मतलब आप तो काफी टाइम से काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, सो ऐसा कौन सा पर्सन था जो आपको बहुत इम्पैक्ट किया? जैसे हम, जैसे अगर मैं अपना पर्सनल बात करूंगा, तो मैं बीडी सर के साथ बहुत कम पीरियड के लिए काम किया, लेकिन मैंने जितना वहां से सीखा है ना, अभी अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे 6-7 साल आराम से लग जाएगा उतना काम इम्प्लीमेंट करने में। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब आपको इतना सिखा के गया हो कि आप अभी 10-15 साल और इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको? मैं ऐसा किसी मतलब एक आदमी को ऐसा कोई ऐसा ये नहीं कि किसी एक आदमी ने इन्फ्लुएंस किया है। राइट। मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरे साथ जब मैंने करियर चालू किया वो भी मेरे को इन्फ्लुएंस करते थे, ओके। क्योंकि यार कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपके साथ हैं, एक अच्छा कंपटीशन होता है। सीखने के लिए मैं अपने जूनियर से भी सीखता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ। तो राइट। आई थिंक आज हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद मेरे से कोई जूनियर हो जो उसमें स्मार्ट हो, तो उससे भी राइट। सीखने का होता है। राइट तो सर। ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी एक का कंट्रीब्यूशन रहा है, बट इट्स एंड बाय गॉड ग्रेस अच्छे लोग मिले हैं जहाँ से सीखने को हर किसी इंडिविजुअल से सीखने को मिला है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मतलब हम अपने ऑफिस बॉय से भी सीखते हैं। राइट तो सर। आई थिंक मल्टीपल लोगों का हाथ रहा है सीखने के मामले में, और इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। मतलब ऐसा है कि ये तो चलता है, मतलब और लाइफ में लोग नए जुड़ेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, और ये जर्नी में उनसे भी सीखेंगे। इनफैक्ट अब तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे भी सीख ही रहे हैं। बढ़िया सर, आपने बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। बट मेरा एक क्वेश्चन अभी, मतलब मेरे को एक चीज ध्यान आई अभी, जैसे आप सर मतलब फ्रंट एंड पे काम किए हो पूरी लाइफ, सो सर थोड़ा थोड़ा टारगेट्स का बताओ, मतलब कैसे रहते हैं टारगेट? जैसे सपोज आपने स्टार्टिंग में किया, मिड लेवल पे आए, अभी सीनियर लेवल पे है, तो क्या कितने 100 करोड़ 1000 करोड़ में क्या मतलब एक रफ, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अभी मतलब एक एक जनरल पर्सपेक्टिव दोगे तो क्या टारगेट्स रहते हैं अलग अलग लेवल्स पे लोगों के? जैसे कोई बंदा स्टार्टिंग में है, फिर मिड में आया, अभी कोई सीनियर लेवल पे है, कोई हेड कर रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन, उसको कितना टारगेट दिया? उसको 1000 करोड़ दिया क्या? 1000 करोड़ करके लाना है तुझे? तो आप वैसे बताओ एक बार। ये टारगेट्स क्या होते हैं ना, मतलब ये बहुत ही ब्रॉड टर्म हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक राइट। है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना ये रहता है कि हम से अगर हम टारगेट स्पेसिफिकली एकदम बात करें, ये रहता है कि हम इतना एक नंबर अचीव करेंगे। ठीक है, कि भाई से फॉर एग्जांपल हम 6,000 करोड़ अचीव करेंगे ये साल में। ओके। ठीक है, ये एक प्लान बनता है। बट फिर उसको आप अचीव कैसे करोगे? जब आप उसको स्लाइस एंड डाइस करोगे, राइट। आप उसको ब्रेक करोगे, और जब आप ब्रेक करोगे तो वो डाउन द लाइन जो इंडिविजुअल है वहां तक उसको पहुंच जाएगा। तो ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होगा, फिर अलग रीजन वाइज पे होगा, फिर जोन वाइज होगा, सिटी वाइज होगा, और फिर इंडिविजुअल लेवल वाइज आ जाएगा। तो वो मतलब जो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग ऐसा बहुत ये टारगेट वर्ड से बहुत डरते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जब राइट। आप धीरे धीरे उसको ब्रेक करने लगते हो, अभी इन फिर जब वो इंडिविजुअल के पास आएगा, तो फिर वो उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा कि भाई मैं ये अपने कौन से ABCDEF क्लाइंट से अचीव करूंगा, कौन वो क्लाइंट है जो मेरे को ये टारगेट अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। तो यार इसमें ये पूरा इट्स अ साइंस, टारगेट इज हाँ, साइंस, वो नंबर बट गेम है देन सर। टू बट देन टू अचीव इट इज मोर ऑफ आर्ट। तो सेल्स इज मोर कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, जहाँ के आपके पास वो साइंस से आ गया कि ये नंबर्स आपके पास आ गए, बट देन आगे उसमें वो आर्ट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं वो कैसे अचीव करूंगा। सर मुझे वो पॉइंट समझा, बट अभी मतलब मेरे को एग्जैक्ट ये क्लियर आइडिया नहीं आ रहा। जैसे सपोज करो कोई XYZ फंड हाउस है, अभी उसका एक पर्सन जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उसको क्या रहता है कि मुझे साल में मतलब एक एवरेज तो बताओ सर, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग आए थोड़ी। हाँ, तो उसमें देखो क्या होता है ना, इतने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, सबका राइट। अपना अपना टारगेट का हिसाब होता है उसमें। कहीं पे मतलब यार जैसे मैंने कहा कि भाई हमारा जैसे कि भाई एक 4,000 करोड़ का हम लोगों ने सोचा कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करेंगे। फिर वो ये देखते हैं कि भाई कितने हमारे पास जोन है, कितने रीजन्स हैं, कितने। तो मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं जस्ट एक नंबर बोल रहा हूँ, या हाँ, एक नंबर बॉल पार्क किसी से का आ गया। नंबर
30 करोड़ हो सकता है, किसी का 50 करोड़ हो सकता है, ऐसी बेसिस कि भाई वो किस रीजन में है, उस रीजन का पोटेंशियल क्या है। अभी ऐसा है कि भाई मैं रीजन कोई होगा उड़ीसा, और उधर पे मैं उसको बोल दूं कि भाई आपको 100 करोड़ करना है, बट उस रीजन का पोटेंशियल ही है कि भाई साल में मैं 30 करोड़ जनरेट कर सकता हूँ, तो वो होगा राइट। नहीं। गॉट द ठीक है। पॉइंट। तो बहुत इसमें साइंस जाता है कि, और हर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके अलग अलग थॉट होंगे राइट। ऐसा। क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, नंबर की बात अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे को किसी एक को वो नंबर देना है, या मैं एज एन इंडिविजुअल क्या नंबर लेना है, क्योंकि यार मैं जो दूसरे पहले ऑर्गेनाइजेशन में था वहाँ के नंबर अलग थे, करंट ऑर्गेनाइजेशन के नंबर अलग है। तो राइट। वो ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारा साइंस होता है। गॉट द अभी पॉइंट। ऑफ कोर्स वो टारगेट हेल्प करने के लिए, जैसे भाई मैंने उड़ीसा को दिया था 100 करोड़, बट मार्केट बहुत अच्छा किया वहाँ पे, उसने आइडेंटिफाई किए कुछ नए कस्टमर्स, नए क्लाइंट जो बड़े क्लाइंट हैं, तो यार वो 30 के बदले 50 भी कर सकता है, क्योंकि वो राइट। नए क्लाइंट अगर ऐड हो गए और वो बड़े उनको बड़ा चेक आ गया या बड़ा कंट्रीब्यूशन आ गया, तो वो 50 करोड़ भी कर सकते हैं। एंड दैट इज वेयर एज अ सेल्स गाय आपको ये देखना है कि मैं वो टारगेट ओवर अचीव कैसे करूँ। राइट। हाँ, क्योंकि टारगेट से कनेक्टेड होता है आपका बोनस। अभी बोनस तो ही बता दो सर, कोई 100% कर रहा है, कितना मिलता है बोनस? सैलरी का ही रहता है ना अपनी इंडस्ट्री में तो, सैलरी का परसेंटेज समथिंग। हाँ हाँ, बस या वो तो तो एक ऑर्गेनाइजेशन बार, वेरिएबल डिपेंड करता है कि एक वो बार कैसे बेसिक मतलब थोड़ा ही जस्ट जो लोग हैं हमारे ना, वो सब स्टार्टिंग करियर में थोड़ा उनको ये नंबर सुनना अच्छा लगता है। तो अभी जैसे सपोज किसी ने 50% टारगेट अचीव किया, किसी ने 100% किया, तो ये क्या, एक रफ फिगर क्या रहता है कि वो कितना बोनस एक्सपेक्ट करते हैं जनरली, जनरल देखो। ऑर्गेनाइजेशन? अभी कैसा होता है ना, ये जो चीज है मतलब इसको आप दो चीज में देख सकते हो जब भी आदमी सेल्स में ज्वाइन करता है। कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन बोनस देती है, कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव्स देती है। ओके। ठीक है। सो जैसे मतलब आप डायरेक्ट B2C में रहेंगे, तो वहाँ पे टिपिकली आपके जो होते हैं वो इंसेंटिव्स बोन सिस्टम्स रहते हैं, वहाँ पे जो आपके वेरिएबल्स रहते हैं उनका अपना अपना, सबके देखो उसमें अगेन सबके अपने पैरामीटर होते हैं। तो देर इज अगेन नो वन थॉट और वन लाइन कि भाई ऐसे ही मिलेगा, कि मैंने समझो 100% किया तो ये, मतलब ये इंडस्ट्री का ऐसा कोई फिक्स नॉर्म है नहीं। अच्छा, ठीक फिक्स है। नॉर्म नहीं है। फिक्स नॉर्म नहीं है कि इसमें आपने 100% अचीव किया तो आपको क्या मिलेगा। सी अगेन आपने 100% किया, बट आपको ओवरऑल कंपनी का भी ग्रोथ देखना है कि कंपनी क्या ग्रो कर रही है। कंपनी आपने किया है 100%, बट हो सकता है कि कंपनी लेवल पे हम लोगों ने 100% अचीव नहीं किया है, तो उस हिसाब से आपके वेरिएबल्स बोनस में भी डिसाइड होते हैं। जब दूसरा पार्ट है इंसेंटिव का, उसमें कैसा होता है कि इंसेंटिव में कैसा होता है, बैंक्स में जैसे या B2C में हो तो वहां पे भी वो लोग अलग अलग पैरामीटर रखते हैं। ठीक है कि भाई से अगर आप कोई बैंक में ज्वाइन हो, क्यों वहां पे हो सकता है आपके, आप अकाउंट कितने लेके आते हो नए, आप इन्वेस्टमेंट का कितना करते हो, आप दूसरे प्रोडक्ट्स जो उनके ड्राइव हो रहे हैं उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हो, या जो वो ड्राइव कर रहे हैं, जो कोर ड्राइव होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी एक प्रोडक्ट को ड्राइव करते हैं तो उसमें क्या है। तो बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं, तो उस आप उन सब पैरामीटर में आपको अचीव करना होता है। और जैसे जैसे मतलब जैसे आपने 5 पैरामीटर होते हैं, बट 5 में से हो सकता है कि भाई आपने 2 नहीं अचीव किए, तो उन लोगों के अगेन वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने इंसेंटिव डिजाइन ठीक किए है, हुए हैं। कर दो पॉइंट। ठीक है, अब आपने एक पॉइंट बोला था कि हाँ, क्लाइंट को एजुकेट करना स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो करोगे तो क्लाइंट साथ से जाएगा, आगे तक जाएगा। दैट इज गुड पॉइंट ना। सो अभी सर आपने इतनी सारी चीजें बताई, अभी अभी मुझे आपसे स्पेसिफिक आंसर चाहिए कि आप ऐसे ऐसे पूरा बॉल पार्क मत बताना, मुझे स्पेसिफिक आंसर बताना ना, एक दो आंसर। जैसे व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि आप उतने 17 साल काम किए हो, तो बिगेस्ट चैलेंज क्या था जो ओवरकम करने के बाद लगा यार कि वाकई में ये तो सबसे बड़ा हर्डल था। तो और क्या मतलब चैलेंज था, आपने कैसे ओवरकम किया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री थोड़ी, मुझे मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है, नंबर पे चलती है, दिमाग का काम है ज्यादा ना, थोड़ा सा इमोशन हर्ट थोड़े कम हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में इंसान, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग इमोशनल बीइंग है, तो वो कैसे फेस करता है इन चैलेंजेस को? तो आप थोड़ा सा कोई चैलेंज बताओ बढ़िया सा, और कैसे ओवरकम किया? ये चैलेंज बोलो मतलब एक था पहले इनिशियल कि मैं शायद जब करियर जब स्टार्ट किया, तो ऐसे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स होते थे या बहुत सारे बड़े अपने डिस्ट्रीब्यूशन हाउस होते थे, जो शायद मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को था उनका नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा था एक्चुअली। मैं तो क्या करियर स्टार्ट किया, तो ये राइट। था कि कैसे मैं फेस करूंगा उस ओके। चैलेंज को। एंड जी मतलब अब ऐसा है कि अगर आगे बढ़ना है जैसे मैंने कहा, तो आपको वो
डर आएगा हमेशा। मतलब जो भी चीज नहीं होगी आपके लिए, मैंने कहा, मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो इंस्टीट्यूशनल सेल करते थे। ओके। तो बट उनके पास जाके म्यूचुअल फंड बताना और ये, और वो मार्केट में बहुत पुराने टाइम से थे, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, उनके नॉलेज बहुत, और मैं शायद स्टार्ट ही कर रहा था, 1 या 2 साल था, तो मुझे ये था मैं क्या बात करूंगा। ठीक है। तो उसके बाद ये चैलेंज जो, मतलब मैं इसको, अब मेरे को जाना है उनका जो डोर है वो नॉक करना है। बट देन क्या हुआ कि आई केम बैक टू माय सुपीरियर, जो मेरे बॉसेस हैं, अगेन उनको क्योंकि एक्सपीरियंस था, राइट। तो मैंने कहा कि बॉस आपने दे तो दिया है मेरे को ये, ठीक है, और उसके पीछे भी देन उसका एक ऑब्जेक्टिव था उनका देने का, जो मेरे को बाद में समझ आया कि यार मैंने सारे इजी काम तो कर लिए यहाँ पे। ओके। तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमने तुमको इसलिए दिया है कि जब आप वो डोर नॉक करोगे, देन ओनली, और आप जब सी एंट्री मारोगे, तब आपको पता चलेगा कि लाइफ इज नॉट दैट इजी। ओके। ओके। क्योंकि उनको फेस करना, तो आई थिंक उसके लिए फिर उन्होंने मेरे को बताया कि बॉस आपको अपना नॉलेज लेवल अप करना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि उनको क्या चाहिए। ठीक राइट। है, आप, ऐसा नहीं है सेल्स में कि बस जो आपके पास है वही है, बट उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपके पास वो चीज़ है, तो वो आपका वैल्यू एडिशन है। तो मेरे को सब समझ आया कि यार अगर हम आज किसी भी इंडिविजुअल से मिलते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं, हमें ये भी समझना है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। जो मेरे पास है मैं उसको बेचने की कोशिश करूंगा, बट उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैं वो क्या लेंगे, वो मेरे को भगा देंगे। राइट। दूसरा एक और चैलेंज था कि जब मैंने अपने आईएनजी में था, आईएनजी वॉज, हाँ जी। आईएनजी म्यूचुअल फंड में, या। वो बहुत छोटी एसेट फर्म थी तब, और तब बहुत बड़े बड़े फर्म्स जो हाउस जो आज भी हैं मार्केट में, आईसीआईसीआई, बिरला टाइप से। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब हमको कोई खड़ा नहीं करता था, मतलब इंडिविजुअल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे या ऐसा। तो हम लोग क्या होता था, जो बहुत बड़ी एएमसी थी वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती थी, और राइट। जो छोटी एएमसी है उनके पास भी वो डिस्ट्रीब्यूटर आते थे। बट हम लोगों के लिए क्या था, बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो शायद वो एंटरटेन नहीं करेंगे। राइट। ठीक है। बट हमारे लिए टारगेट जो कस्टमर था या टारगेट डिस्ट्रीब्यूटर, वो नीचे वाला था। बट वो नीचे वालों से भी ऐसा था कि हमको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती थी, क्योंकि हम बहुत छोटे ही थे। तो यार वो ऐसा होता था कि हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं तो ऐसी जगह पे भी गया हूं जहाँ पे मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला गेट आउट, तो ऐसा भी बोला है। राइट तो सर। बट देन इट इज दैट इज हाउ, आप कितनी बार वो डोर नॉक कर सकते हो, आप में कितना पेशेंस है, वो उनके राइट। पास कंटिन्यूस जाते हैं। क्योंकि क्या होगा कि आपको 10 बार जाओगे, 10 बार वो भगाएगा, बट हो सकता है 11th बार पे वो बोलेगा चल आजा मैं तेरे को सुनता हूँ। और जब वो आपको अपॉर्चुनिटी वो मिलेगी, तब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तब राइट। आपको उसको जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्या दे सकते हो। एक होगा कि उनको जो चाहिए और आपके पास नहीं है, तो कोई वो आपका कोई मोटिव ही नहीं रहेगा वहां कनेक्ट पे। नहीं होगा। बट उनको जो चाहिए और आपके पास है, और आपने बता दिया कि ये मेरे पास है और वो कैसे बेनिफिट करेगा, देन आपका वो रिलेशन चलता है फिर आगे। ग्रेट सर, समझे मतलब। और मतलब अभी आपने इसके पहले एक पॉइंट बोला था कि लाइक कभी कभी आपके सीनियर्स आपको थोड़ा प्रेशर वाला टास्क दे रहे हैं, तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि शायद आप थोड़े थोड़े सब चीज़ों का टेस्ट कर पाओ। ऐसा नहीं कि अभी आपने इजी टास्क कर, जनरली ऐसा होता है ना कि थोड़ा ज्यादा काम दे दे तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। बट कभी सीनियर दे रहे हैं तो उनको पता है क्या काम किसको दे रहे हैं और इसको क्या चैलेंज फेस होगा। तो ट्रस्ट ऑन देम, लाइक दे वांट योर गुड एज वेल। सो अभी जैसे अभी सर मतलब एक चीज मतलब मैंने भी मतलब एक्सपीरियंस की तो सीखी थी कि ये सारा गेम ना ट्रस्ट का रिलेशन का है। अभी जैसे बहुत सारे क्लाइंट है वो आपको जानते हैं, नरेश भाई बोलेंगे, नरेश भाई पैसा डालने का कितना डालूं किधर, फोन कर लेंगे आपको। बट अभी मुझे एक डायनामिक इसमें अभी तक नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझा है, अभी डाउटफुल है वो। लेकिन जब जब जो या एज अ पर्सन इंडिविजुअल मूव होता है, तो वो साथ साथ मूव होता है, क्लाइंट कैसे रहता है मतलब कभी कभी मतलब मैंने कुछ जगह ऐसा नोटिस भी किया कि क्लाइंट थोड़ा साथ साथ ही मूव कर जाते हैं। और क्या मतलब थोड़ा इस चीज का डायनामिक्स मुझे कभी समझ में नहीं आया अभी तक। आप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। देखो, अगर जो मैं आपका क्वेश्चन समझा हूँ वो है कि हम जैसे ग्रो करते हैं तो क्लाइंट भी ग्रो करता है। राइट। तो मैंने जैसे आपको इनिशियल बताया था कि अगर आपने क्लाइंट की लाइफ में अच्छा किया, उसको उसको अच्छा बताया, तो डेफिनेटली आपके साथ आगे भी आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं, क्योंकि B2B में हम डायरेक्टली जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल अपना मार्केट में स्पेंड किया है, और उनके साथ उनके क्लाइंट भी आज स्पेंड कर रहे हैं, आज वो क्लाइंट भी
से इनिशियल जब उन्होंने स्टार्ट किया था, हो सकता है कि वो 1 करोड़ का क्लाइंट है, आज वो 100 करोड़ का क्लाइंट हो गया है। राइट। वही क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, या अपने बिजनेस में ग्रो कर रहा है, या अपने काम पे ग्रो कर रहा है। तो उस हिसाब से क्लाइंट भी और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आरएम जो उन्होंने उनको वैल्यू एडिशन दिया, उनका पैसा ग्रो कराया, तो वो आज क्लाइंट उनके साथ रहता है। तो वंडरफुल। एंड आई थिंक वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आरएम का, या रिलेशनशिप मैनेजर जो भी होता है, कि ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आज उसने क्लाइंट को हेल्प किया, तो क्लाइंट भी उनको हेल्प करता है आगे ग्रो करने के लिए। राइट, कहीं ना कहीं मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एक बेस है अपने पास, मतलब अभी जहां भी जाएंगे जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग हैं कुछ जो हमें सपोर्ट करेंगे, कि हमेशा मैं उनके पास कॉल कर सकता हूँ कि सर अच्छा फंड है, पैसा डालोगे क्या। तो ये पॉइंट बिल्कुल। आप थोड़ा क्लियर बोल रहे हो। तो जैसे 10 साल लगा लिया, अभी आप 17 साल कर चुके हो, तो लाइक आपके पास ऐसे 50-100 क्लाइंट होंगे कुछ जो आपके अच्छे रिलेशन में हैं। पैसा रहता ही है हमेशा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपने बताओगे तो दे विल ट्रस्ट ऑन यू। तो ऐसा गेम आप यस। बोल रहे हो, ये गेम वैसा है। ठीक है, मतलब समझा समझ। सर जैसे अभी आप इमेजिन करो कि आपकी टीम सुन रही है इस पॉडकास्ट को, सो आप एक मैसेज क्या दोगे कि भाई करियर में ग्रो करना है तो इसको फॉलो कर लो। और मैं समझ रहा हूँ कि आप बॉस हो उनके, ऐसा मत सोचना कि बॉस को खुश रखना है, उसके अलावा नहीं बता। ठीक। तो मैं तो अपनी टीम को हमेशा यही बोलता हूँ, पहला है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, एंड और प्लस हमारे काम का नेचर नेचर ऑफ आवर वर्क इज कि रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो रिलेशन बनाते रहो, मिलते रहो लोगों से, वो सबसे बड़ी चीज है। और वो तभी आएगा जब आपके उसमें डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, एंड ऑफ कोर्स आपका नॉलेज कंटेंट क्या रहेगा, उनसे जब आप बात करोगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट एंड दिस इज अ कंटिन्यूस जॉब, कंसिस्टेंसी ये करते रहना है। मैं मतलब आज 17 साल हो गए, तो मैं एक उस आदमी को पिछले 17 साल से मिल रहा हूँ। राइट। तो वो ऐसा है क्योंकि, और कहाँ कहीं ना कहीं उनको हेल्प किया, उन्होंने मेरे को हेल्प किया, मैंने उनको असिस्ट किया। तो आज वो कैसा वो रिलेशन बन गया है, वो तभी आएगा। और ये कंसिस्टेंट वाला काम है, आपके काम में ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और राइट वो सर। तभी आएगी जब आप में डिसिप्लिन होगा, वो तभी आएगी जब आप हार्ड वर्क करोगे। तो ये बहुत चीजें हैं, मतलब ये 2-3 चीजें जो मैं अपनी टीम को बोलता हूँ ये सब करने के लिए। सर मतलब और एक चीज और है, चैलेंजेस हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। और चैलेंजेस रहेंगे, मतलब बहुत टाइम होगा कि जब दोनों पार्टीज के व्यूज नहीं मिलेंगे। और उस टाइम हम कैसे म्यूचुअली एग्री करेंगे चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड वही चीज़ होता है, आपका रिलेशन फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। राइट सर। सर थोड़े टाइम पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, शायद उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइक एक पर्सन ने अपनी कंपनी में सेल्स टीम के लिए जगह ही नहीं बनाई थी ऑफिस में कहीं पे, कि तुम्हें ऑफिस में जगह ही नहीं है, बाहर ही घूमते रहो। सो कहीं ना कहीं मेरे को सही भी लगा ये पॉइंट तो, कि सेल्स वालों का, मैं बाहर जितना बाहर रहेंगे उतने रिलेशन बिल्ड होंगे, उतना काम बढ़ेगा। सो आपका क्या व्यू है? आप बनाओगे जगह अपने ऑफिस में सेल्स टीम के लिए? नहीं यार, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि सेल्स इज की टीम या की डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि दे आर द फ्लैग बेरर। मतलब राइट। वो लेके जाते हैं कि भाई, वो बताते हैं कि भाई ये कंपनी है। मतलब अगर जैसे आपने कहा कि सेल्स का ऑफिस नहीं रहेगा, बट वही बताएंगे कि सेल्स ऑफिस का, वो ऑफिस का एड्रेस क्या है राइट। ना। तो बताने वाले तो वही हैं। तो ऑफ कोर्स उनको जगह मिलनी तो जरूरी है ओके। ऑफिस में, क्योंकि अभी जैसे मैं कहूँगा बॉम्बे जैसी सिटी में या फिर दिल्ली या नॉर्थ में भी बारिश तो कहीं पे भी हो सकती है, कहाँ जाएगा बेचारा वो। राइट राइट तो ओके। उसको ऑफिस जरूरत है। और आई थिंक फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में तो एक हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह होता है ये सब चीज़ों का। और वो इसलिए भी है क्योंकि इसमें इट इज़ लाइक ट्रेनिंग आपकी इसमें कंटिन्यूस होती रहती है, सेल्फ डेवलपमेंट होता रहता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सेल्स, इट इज़ ऑल्सो, जैसे मैंने कहा, नॉलेज ड्रिवन है ये। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसमें होता है। तो ऑफिस और वहाँ पे विद इन ऑफिस उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और कंटिन्यूस कुछ ना कुछ स्किल्स अपग्रेड करने के लिए ये सब जरूरी है। राइट सर, ग्रेट सर। तो अगर मेरे मतलब को बोलोगे, मैं तो सेल्स को एक अच्छा सा ऑफिस दूंगा यार। अच्छा। अच्छा सा ऑफिस दोगे, ठीक है सर। ग्रेट सर। मतलब सर आपने सारे आंसर बहुत अच्छे से दिए, मतलब काफी एक्सप्लेन किया, और हम लोग जानते हैं कि थोड़ा कंफर्ट ही रहता है जब कोई नोन का पर्सन होता है, तो मेरे लिए भी मतलब काफी लर्निंग रही, क्योंकि जैसे आपने बोला ना अभी सारी चीजें जितनी बोली, कि अगर सेल्स एज अ लाइफ स्किल हो जाता है, मतलब अगर करो तो किसी को अगर सेल्स आ गया ना, तो दुनिया में किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी रह के कुछ भी कर लेगा। तो वही गेम है पूरा। अगर लोग लेकिन बहुत सेल्स से भागते हैं, आप देखोगे ना, जहाँ जैसे सेल्स का नाम लग गया ना, सो आई वोंट टेक दिस जॉब, मैं ये नहीं करेगा, मैं वो नहीं करेगा, एक्स वाई जेड।
बट सेल्स इज लाइक मेरे लिए तो लाइफ स्किल है भाई। आप लोग भी सीखोगे तो बढ़िया है, और जितने लोग हमारी कम्युनिटी में, सेल्स तो भाई एक लाइफ का पार्ट है। आज कर लो, लाइफ लॉन्ग इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने सारे आंसर बहुत अच्छे दिए। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट विद मी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फ्रेंड्स। या मतलब मैं एक ही लास्ट में आपके व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि सेल्स से डरो मत। और हम तो सेल्स बचपन से हर कोई सेल्स कर ही रहा होता है। लाइक इट इज़ जस्ट दैट आई थिंक जब आप अपना करियर चालू करते हो और वो किसी ने बोला सेल्स एज अ वर्ड, तो वो आई थिंक वो आपको ऐसा डर लगता है कि उसमें टारगेट है, प्रेशर है। बट अगर आप उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दोगे तो फिर कोई चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट बहुत मज़ा आता है ये सब में। आप जब करते हो, अप्स एंड डाउन तो हर जगह ही रहेंगे, तो इसमें भी वैसा ही मज़ा आएगा आपके व्यूअर्स को भी। और आई थिंक बट ये भी है कि वो हर चीज़ हर किसी के लिए बना नहीं है। सेल्स हर किसी का इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। तो आप पहले से अपना होमवर्क करें, या आप जब भी इस आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो वाया इंटर्नशिप आप ये देख सकते हो कि आपको उसमें अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और तो मैं तो ये कहूँगा कि 3 महीने का भी नहीं, इट इज़ लाइक मोर लाइक एन आर्मी ट्रेनिंग होना चाहिए कि एक एक साल आप सेल्स में रहो, तब आपको पता चलेगा कि भाई इसमें हो रहा राइट है सर। या मैं आगे कर सकता हूँ या नहीं। नहीं सब मजेदार है, बिल्कुल मजेदार। है ना? बढ़िया आंसर। चलो, यस सर, थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। सो मच सर, और थैंक यू थैंक सो यू, मच। और विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर असाइनमेंट जो भी आप आगे करो। है ना? थैंक यू सो मच सर यार।